Chapter 5th, Shloka. If you all have book, please you all can open. Thank you very much once again for joining. So we are reading Bhagavad Gita, fifth chapter, 18th Shloka. Vidya vinay sampanne brahmane gavi hastani niche sapake cha pandita samadarshina. So I am reading purport. The humble sage is by virtue of true knowledge. See with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. Purport. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or castes. The Brahmana and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species. But these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. This is due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his planetary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma regardless of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same. The bodies are material productions of different modes of material nature. But the soul and the supreme soul within the body are of the same spiritual quality. So we are discussing this shloka. In this shloka, Krishna explained भगवान श्री कृष्ण भी कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते. सो उनके भक्त भी कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते. ए डिवोटी डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ कास्ट. कास्ट क्या है? हाइयर है, लोअर है, या फिर जेंडर मेल है या फीमेल है, या इनकम कोई रिच है या पुअर है, या कलर कोई गोरा है, काला है, ब्लैक एंड व्हाइट है, एंड नेशनलिटी यानी कोई इंडियन है या अमेरिकन है, यूरोपियन है ना, इस बेस पे नहीं. एंड कोई किसी का एजुकेशन यानी कोई लिटरेट है और इलिटरेट है, यानी कोई अनपढ़ है और कोई पढ़ा लिखा है. इसके बेस पे भगवान कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करते, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं on the base of all these things. So Krishna devotee also is doesn't discriminate on the base of all these things. So I can explain. I will explain one things and I will give you example also. Like first, like caste. If anyone is get higher caste, then Krishna will support. या फिर anyone is lower caste, then Krishna will support. It is not like that. We can I can give you example from CC यानी चैतन्य चरितमृत अद्वैताचार्य जी, यानी पंच तत्व वाइज दे रहे, यानी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित. तो इनमें से अद्वैताचार्य जी जो है वो महाविष्णु जी का अवतार है. सो अद्वैताचार्य जी के ब्राह्मण, अद्वैताचार्य जी ब्राह्मण है स्वयं, एंड उन्होंने ब्राह्मणों को इनवाइट किया श्राद्ध सेरेमनी में. यूजुअली श्राद्ध सेरेमनी जब होता है तो ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को, यानी जो उच्च कोटि के ब्राह्मण है उनको इनवाइट किया जाता है, और सभी तरह के ब्राह्मण को इनवाइट करते हैं, पर उन उच्च कोटि के ब्राह्मणों को पहले भोज करवाया जाता है. तो अद्वैताचार्य जी ब्राह्मण को उन्होंने इनवाइट किया, बट ऑन श्राद्ध सेरेमनी गेव हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू एन आउटकास्ट बाय सोशल स्टैंडर्ड्स नेम्ड
हरिदास ठाकुर। यानी अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध सेरेमनी में सारे ब्राह्मणों को इनवाइट किया और वैष्णवों को भी इनवाइट किया, जिसमें कि एक शुद्ध भक्त हैं जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। यानी हरिदास ठाकुर जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को ही वर्शिप करते हैं, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो उन सब जो कि कास्ट बाय कास्ट बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे, है ना, मतलब ब्राह्मणों में भी कैटेगरी होती है ना कि भाई ये इस कास्ट, तो उसमें भी उच्च कोटि के थे। तो उन्होंने हरिदास को जो है, हरिदास ठाकुर को प्राथमिकता दी, पहले उनको भोज करवाया। जबकि हरिदास ठाकुर कौन है? वो एक मॉडर्न परिवार में है। ही बॉर्न ऑन मुस्लिम फैमिली। वो मॉडर्न परिवार में जन्म लिए, पर उन्होंने भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया, पवित्र नाम का, होली नेम्स का जप किया। और वो एक दिन में 3 लाख नेम जप करते थे, उससे भी ज्यादा, 192 राउंड्स। यानी एक बीट में कितने होते हैं? अभी हमने किया ना, एक राउंड किया तो उसमें कितने बीट्स थे? 108, यानी 108। ऐसे राउंड्स वो 192 टाइम करते थे। यानी 3 लाख से भी ज्यादा भगवान का नाम वो लेते थे, ऐसे शुद्ध भक्त थे। तो जब अद्वैताचार्य जी ने श्राद्ध सेरेमनी कर रहे थे, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को भी इनवाइट किया, और उनको उन्होंने पहले जो है वो भोज दिया। यानी सब ब्राह्मणों में जो कि कास्ट से ब्राह्मण थे, उनसे भी श्रेष्ठ उनको माना और उनको रेस्पेक्ट दिया, उनको सर्व किया। तो हम देख सकते हैं कि अद्वैताचार्य जी जो है वो बहुत बड़े आचार्य रहे हैं, है ना, स्वयं भगवान के, महाविष्णु के अवतार हैं और बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। तो उन्होंने उसके बावजूद उन जो कास्ट से ब्राह्मण थे उनसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट किसको दिया? हरिदास ठाकुर को दिया। क्योंकि जो जन्म है वो मायने नहीं रखता, कर्म मायने रखता है। बिकॉज वैष्णव इज प्योर एंड इवन हायर देन ब्राह्मणा बाय बर्थ। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है पर उसके जो एक्टिविटीज हैं वो ब्राह्मणों के तरह नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं माने जाएंगे। पर अगर कोई शूद्र कास्ट में भी, या फिर कोई मुस्लिम, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर, जो है एक मॉडर्न परिवार में बर्थ लिए, पर उनके कार्य कैसे थे, उनकी एक्टिविटीज जो थी हायर थी, इसलिए उनको उन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिला। तो जन्म लेने से फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो हायर कास्ट में, सॉरी, प्रतीक ही से स्पोक टू 20,736 टाइम हियर हरे कृष्ण। नो नो नो, 3 लाख से भी ज्यादा, 192 राउंड्स। प्रतीक, जो हरिदास ठाकुर हैं वो 192 राउंड डेली करते थे। 192 मल्टीप्लाई 108, बिकॉज एक माला जो है जब कंप्लीट होती है, जब 108 बीट्स पे हम हरे कृष्णा महामंत्र जब कर लें, तो 3 लाख से भी ज्यादा वो जो है नाम डेली जप करते थे। सो हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करते कि कोई हायर कास्ट का है या लोअर कास्ट का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अद्वैताचार्य जी ने किसको रिस्पेक्ट दिया, किसको प्रेफरेंस दिया? हरिदास ठाकुर को, जबकि वो कितने किस में थे? मॉडर्न परि फैमिली से बिलोंग करते थे। सो इसी तरह भगवान जो है वो जेंडर कास्ट में मैं आई वांट गिव यू वन मोर एग्जांपल। लाइक गरुड़ देव, आप सब विष्णु टेम्पल में जाते हैं ना, अभी हम हैदराबाद में जैसे रहते हैं, तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत सारे विष्णु टेम्पल हैं, बालाजी का टेम्पल है। तो आप देखेंगे कि व्हेन वी आर एंटरिंग इन द टेम्पल, देन गरुड़ देव इज देयर, है ना। पहले हम गरुड़ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम बालाजी के और भगवान के अन्य स्वरूपों के दर्शन करते हैं। तो गरुड़ गरुड़ जी जब विष्णु मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गरुड़ वहां होते हैं, गरुड़ देव, और उनके दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान ने गरुड़ देव को चुना, जबकि क्योंकि वो गरुड़ मतलब ईगल, है ना, लोग तो उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि उनसे बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, स्पैरो है, पिकॉक है, पर भगवान ने किसको चूज किया? गरुड़ देव को चूज किया। तो विष्णु पर्सनल व्हीकल कैरीज लॉर्ड विष्णु ऑन हिज बैक, यानी भगवान को अपने ऊपर वो बिठा के चलते हैं। तो वो कौन है? गरुड़ देव। तो इसका मतलब बॉडी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हाइयर और लोअर कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइयर एग्जांपल दिया, लाइक अद्वैताचार्य जी ने जैसे उनको हरिदास ठाकुर को भी क्या है प्रेफरेंस दिया। पर अगर कोई पशु योनि में भी है, कोई जैसे ईगल, गरुड़ देव का एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो भगवान उनको अपना वाहन बनाए, उन पे बैठ के वो जा रहे हैं। सोचिए उनको कितना उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, पोजीशन दिया।
तो भगवान के लिए मैटर नहीं करता। जब हम कि भगवान श्री कृष्णा डजंट डिफरेंशिएट वेदर ए पर्सन इज बॉर्न इन हायर और लोअर कास्ट, ही ओनली सीज क्वालिटी ऑफ डिवोशन इन द पर्सन। भगवान जो है वो क्वालिटी देखते हैं, वो हायर और लोअर कास्ट नहीं देखते, मेल या फीमेल नहीं देखते, रिच या पुअर नहीं देखते, ब्लैक या व्हाइट नहीं देखते, इंडियन या अमेरिकन नहीं देखते, और लिटरेट और इलिटरेट नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? डिवोशनल क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी ऑफ डिवोशन। So I want give you more example. So second example we can see, we are discuss na gender, about gender, male or female. So we can see Krishna devotees, male or female both are there. Like Draupadi. द्रौपदी कौन थी भगवान की? She was pure devotee, प्योर डिवोटी थी। तो हम देख प्योर डिवोटी हैं, द्रौपदी इज प्योर डिवोटी, कुंती महारानी, रुक्मणी देवी, सत्यभामा, राधा रानी, गोपीज, वो सब क्या है? लाइक बॉडी उनका फीमेल का है, पर वो सब भी क्या है? प्योर डिवोटी हैं। तो हम देख सकते हैं कि मेल हो या फीमेल, दोनों भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो द्रौपदी को भी भगवान ने जो है अपनी सखी माना और उनको जो है वो दर्शन दिए। तो कुंती महारानी पे भी कृपा किया जो उनकी बुआ थी, और रुक्मणी देवी जो कि उनकी सत्यभामा जो उनकी वाइफ्स बनी, एंड राधा रानी जो परम भक्त हैं, गोपीस और राधा रानी। तो हम देख सकते हैं कि कोई स्त्री के शरीर में यानी फीमेल है तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, और भगवान डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो वी कैन सी, like if we are thinking only Krishna is giving mercy to females, not like that, because we can see in पांडवा, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज और गोपास, वो क्या है? वो मेल बॉडी में है, उसमें भी भगवान ने उनको जो है अपनाया, उनको कृपा दी अपनी। तो भगवान श्री कृष्णा डजंट डिफरेंशिएट वेदर ए पर्सन इज मेल और फीमेल, he only sees the quality of devotion in the heart of the person। भगवान जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आई एम गिविंग वन एग्जांपल because we have less time, otherwise I can give you more example, because body is only an external, doesn't whereas atma quality of devotion is to be seen, है ना? जो भी हमारा, अगर हम देखें कि हम हायर कास्ट लोअर में है, मेल फीमेल है, रिच पुअर है, ब्लैक व्हाइट है, इंडियन अमेरिकन है, ये सब तो क्या है? एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, बाहरी तौर पे है। पर इंटरनल क्या देखा जाता है? क्वालिटी ऑफ डिवोशन। देन थर्ड, इनकम, रिच और पुअर। अगर हम ये समझें, इफ यू आर थिंकिंग कृष्णा इज सपोर्टिंग टू रिच पीपल ओनली एंड और पुअर पीपल ओनली, तो वी कैन सी सुदामा ब्राह्मणा, कंप्लीटली पुअर मैन, नो मनी, नो रिचेस, बिल्कुल भी उनके पे रुपया नहीं था, मतलब उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। सो सोचिए, ऐसे पुअर ब्राह्मणा जब वो द्वारिका में जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, मे बी यू ऑल हर्ड दिस पास टाइम इज वेरी वंडरफुल, बट आई कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट। सो सुदामा जो है वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, जो वो संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं विद्या नॉलेज लेने के लिए, तब सुदामा उनको मिलते हैं और उस समय वो उनके फ्रेंड बनते हैं। तो इतने समय बाद देखिए, अभी भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश बन गए, और सुदामा जी एक ब्राह्मण जो है, वो एक गरीब ब्राह्मण है और वहां पे रहते हैं, पर वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। तो उनके कपड़े कैसे हैं? बिल्कुल फटे हुए हैं, ऑल क्लोथ आर लाइक डर्टी एंड फटे हुए बिल्कुल भी। और कोई जब वो और उनकी हालत ऐसी है, जब वो जाते हैं और महल के गेट पर, तो उनके द्वारपाल को क्या बोलते हैं कि वो पूछते हैं कि आप कौन है, तो वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। तो द्वारपाल जब भी सुनते हैं तो दे आर सीइंग लाइक दैट, ऊपर से नीचे तक देखते हैं उनको, क्योंकि वहां पे भगवान के द्वारिकापुरी में कोई भी ऐसा नहीं है कि, मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके इतने फटे हुए कपड़े हों, मतलब फटे हुए कपड़े ही नहीं है, बल्कि जो सिपाही हैं, जो द्वारपाल खड़े हैं, उनके भी क्लोथ बहुत अच्छे हैं। तो सोचिए कि वो उनके राज्य में कोई ऐसा है ही नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र बता रहे हैं, और इनके कपड़े देखो, उनको उनकी हालत देखो कैसी हो रही है, अरे जो द्वारिकाधीश है, जो सम्राट है, उनके मित्र हैं ये। तो वो थोड़ा हंसते हैं, पर फिर भी वो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आया जो कि अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, और वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा सुनते हैं
हालांकि वो क्या है, उस समय जो लीला कर रहे हैं वहां पे वो एक राजा है, पर राजा होने के बाद भी वो ऐसे दौड़ के आते हैं नंगे पैर, विदाउट स्लीपर और विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ही रन। वो बहुत तेज भागते हैं, किनसे? सुदामा को गले लगाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो भगवान कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते वो, कि कोई रिच होगा तो ही उसको उससे कृपा करेंगे, उस पर मिलेंगे, वो पुअर होगा तो उसको मिलेंगे। भगवान जो है सब अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। सो के जब वो द्वारिकापुरी में आए तो उनके कैसे क्लोथ थे? टॉम क्लोथ्स, यानी बिल्कुल फटे हुए ऐसे क्लोथ थे। तो इस संसार के लोग जो भक्त और वैष्णव हैं वो डिफरेंशिएट नहीं करते। ये क्वालिटी कैसे आई? वैष्णवा इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएट ना टू कास्ट, जेंडर, इनकम, कलर एंड नेशनलिटी। सो हाउ दे कैन गेट क्वालिटी? फ्रॉम कृष्णा ओनली। ये जो क्वालिटी है भगवान श्री कृष्ण से आई है। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो भी डिफरेंशिएट नहीं करते, वो भी जो है सिर्फ एक्सटर्नल थिंग को नहीं देखते, इंटरनल थिंग को देखते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ डिवोशन देखते हैं, ना कि एक्सटर्नल थिंग्स को देखते हैं। तो हम वी कैन सी, अभी हमने देखा कि सुदामा जो है कितने गरीब हैं और भगवान उनको गले लगाने के लिए दौड़े। मैंने राजा होते हुए भी उनको ये नहीं लगा कि मेरी पोजीशन क्या है, लोग क्या कहेंगे, है ना, ये नहीं सोचा उन्होंने। पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि भगवान पुअर को ही सपोर्ट करते हैं, रिच को नहीं करते। तो हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो तो संसार के सम्राट थे, किसी एक राज्य के नहीं थे। राजा नहीं थे एक राज्य के, क्या थे? पूरे संसार के सम्राट थे। उनको भी भगवान ने जो है वो सपोर्ट किया, उनके क्वालिटी ऑफ डिवोशन को देखा। भगवान ने पुअर और रिच नहीं देखा, क्वालिटी ऑफ डिवोशन को देखा। बिकॉज युधिष्ठिर महाराज आल्सो वाज प्योर डिवोटी, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने उनकी क्वालिटी को देखा। सो वी कैन डिस्कस अबाउट कलर, है ना, फोर्थ वन, कि अगर कोई व्हाइट कलर है या कोई ब्लैक कलर है, देन कृष्ण विल लाइक नो जी। तो हम देख सकते हैं कि देव कन्या जो अप्सराएं हैं, देव कन्या हैं, वो कितनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। तो भगवान एक्सेप्ट देव कन्या ऑल्सो, बट वी कैन सी कुब्जा। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे, पास्टम कर रहे थे, तो उसमें एक कुब्जा नाम की स्त्री थी। और वो क्या करती थी? वो कंस को चंदन का लेप लगाती थी, डेली चंदन को घिसती थी, और दे आर रबिंग चंदन एंड दे आर ऑफरिंग टू कंसा डेली। तो वो कंस को ऑफर करती थी चंदन को, और वो बहुत मेहनत करके उसको निकाल के लाती थी। उस कुब्जा को भी जब उन्होंने भगवान कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा एक दिन, जब वो ले जा रही थी चंदन कंस को देने के लिए, लगाने के लिए, तो उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने जो है उन मन में ये इच्छा की कि मैं इनको चंदन लगाऊं, कंस को नहीं, इसके बदले भगवान श्री कृष्ण को लगाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा के मन की बात को जानकर समझकर उन पे कृपा की, और उनका चंदन को एक्सेप्ट किया और उनको सुंदरी बना दिया बाद में। तो भगवान जो है ऐसा नहीं कि सुंदर या कुरूप को, यानी ब्लैक और व्हाइट को ही, ब्लैक को पसंद करते हैं या व्हाइट को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के लिए सब जो है समान है। यानी बिकॉज इन दिस श्लोका वी कैन सी लास्ट वर्ड समदर्शिना, यानी भगवान क्या है? समदर्शनी है, यानी वो सबको एक समान देखते हैं, हु सी विद इक्वल विजन। Krishna have equal vision, not he is doing differentiate. No. So Shri Krishna doesn't see the external beauty of a person. He only sees the quality of devotion in the person. That's why Krishna gave mercy to Kubja also. So fifth one, nationality, कोई इंडियन है, अमेरिकन है, तो वी कैन सी इन इस्कॉन so many type devotee are there. Some is foreigner, some is Indian, some is European, some is like modern, some is Hindus. So many different people are there. So the ISKCON maybe Srila Prabhupada did not differentiate among people. शिला प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि गोरा है, काला है, अमेरिकन है तो इसको वो करना चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा है तो इसको करना चाहिए, मतलब उसको अपने मूवमेंट में लेना चाहिए, ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने भी कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। उन्होंने जो है उन सबको इक्वल समझा, और सबको इक्वल जो है ट्रीट किया, और सबको दीक्षा दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को दीक्षा दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकन को दीक्षा दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोपियन को दीक्षा दिया, उन्होंने सबको दीक्षा दिया। तो वी कैन सी
Prabhupada also did not differentiate among the peoples. So American, European, Indian सबके सब उनके लिए जो है एक समान थे. And he told everyone to chant 16 rounds of Hare Krishna mantra and follows 4 regulative principle. तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि अमेरिकन हो तो ठीक है, आप you can chant 4 round, it is okay. No. Prabhupada told to anyone, you all can chant 16 round and you all can follow 4 regulative principle. यानी सारे रूल्स और रेगुलेशन जो थे वो सबके लिए समान थे, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, कोई भी हो. तो प्रभुपाद ने सबके लिए वो प्रिंसिपल दिए. एंड ही गेव इनिशिएशन इफ दे वर डूइंग सो. अगर वो सब ये कर रहे थे, यानी 16 राउंड चैंटिंग एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दे आर फॉलोइंग, देन प्रभुपाद गेव इनिशिएशन. उन्होंने ये नहीं बोला कि किस कास्ट के हो, गोरे हो, काले हो. प्रभुपाद ने क्या देखा? क्वालिटी ऑफ डिवोशन. In India, in ISKCON, we have devotees from all nationalities. सभी जगह से जो है वो ISKCON में डिवोटी आते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राज्य के या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, पर्टिकुलर कलर का या कास्ट का, ऐसा नहीं है. तो हम देख सकते हैं कि I can give you one example, like राक्षस demon son who प्रहलाद महाराज. तो प्रहलाद महाराज क्या है? वो राक्षस के पुत्र थे, पर फिर भी वो क्या बने? शुद्ध भक्त बने, भगवान के शुद्ध भक्त. तो ऑल्टर में जब हम देखेंगे कि जब हम नरसिंह भगवान जी के फोटो या विग्रह रखते हैं, तो वहां पे उनके साथ कौन होते हैं? उनके फुट स्टेप्स के पास कौन खड़े होते हैं? प्रहलाद महाराज खड़े होते हैं. जबकि वो कौन है? वो डीमन के पुत्र थे, यानी राक्षस के पुत्र थे, पर कौन बने? शुद्ध भक्त बने. तो यानी क्वालिटी को देखा नरसिंह भगवान ने, प्रहलाद महाराज जी की क्वालिटी को, यानी डिवोशन ऑफ क्वालिटी ऑफ डिवोशन को देख के हुआ है, ना कि ये देखे कि वो राक्षस का पुत्र है या फिर देव का पुत्र. सो यस, फिफ्थ वन, यानी लिटरेट एंड इलिटरेट. सो कोई अगर पढ़ा लिखा है तो भगवान उसको मिलेंगे, या फिर नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको मिलेंगे. सो ऐसा नहीं है. तो हम देख सकते हैं कि हमारे षड गोस्वामी हैं, उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी. ये षड गोस्वामीज हैं, जिसमें से एक जो सीनियर है, बिग पोजीशन में है, वो है रूप गोस्वामी जी, जो सब में सुप्रीम है. सो रूप गोस्वामी जी बहुत विद्वान थे. ही न्यू 6 लैंग्वेज. वो 6 लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे. जानते ही नहीं थे, एक्सपर्ट थे. हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अरेबियन, उड़िया एंड पर्शियन. इन सब में वो जो है 6 लैंग्वेज में वो बिल्कुल एक्सपर्ट थे. ही हैज रिटन मैनी बुक्स इन संस्कृत. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं संस्कृत में. और उसके बट ही वॉज प्योर डिवोटी. देन कृष्णा गेव मर्सी, सो कृष्णा एक्सेप्ट देम. बट दूसरी ओर गौर किशोर दास बाबा जी, हमारी गुरु परंपरा में, गुरु आचार्य में ही है. तो वो क्या थे? इलिटरेट यानी अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे. उनको अक्षरों तक का ज्ञान नहीं था. फिर भी उन्होंने जो है वो भगवान की प्राप्ति करी, यानी वो भगवान को की भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाए. तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भी, यानी भगवान की कृपा के लिए भी, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें बहुत सारा एजुकेशन चाहिए होता है, बहुत सारी सक्सेस चाहिए होती है, उसके बाद लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं. पर कृष्णा इज नॉट डूइंग लाइक दैट. कृष्णा इज एक्सेप्ट इन एनी कंडीशन, बट क्वालिटी ऑफ डिवोशन शुड बी देयर. That's it. So Gaur Kishore Das Babaji, it's very pure bhakta. So he did bhakti very nicely. So Krishna accept and Krishna gave mercy also. So Sri Krishna only sees quality of bhakti. Everything else is external and superficial, not internal. As when one is becoming a devotee, he and she also showing develops this quality of samdarshina. यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के क्वालिटीज भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान में जो क्वालिटी है वो भी हम में आ जाएंगी. तो भगवान की क्वालिटी क्या है? समदर्शिना. यानी भगवान क्या है? वो समदर्शिना है, सबको समान रूप से देखते हैं. ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई छोटा बड़ा, या फिर जैसे वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, यानी बेस ऑन कास्ट, जेंडर, इनकम, कलर एंड नेशनलिटी, एजुकेशन, लाइक दैट. Krishna is not seeing. Krishna is seeing only quality of devotion. Then point second, equal vision doesn't mean equal
रेसिप्रोकेशन, यानी जैसे कि suppose because in this shloka is mentioning na a cow, a elephant, a brahmana, so a snakes. So equal vision doesn't mean ki equal reciprocation. Like if a snakes is there and lion is there, then we can't go there and we can't hug. बिकॉज अगर स्नैक के पास जाएंगे तो हमें डर लगेगा ना, अरे वो हमें काट लेगा। यदि हम लायन के पास जाएंगे तो हमें लगेगा कि वो हमें खा जाएगा। पर वी कैन गो ब्राह्मणा, ब्राह्मणा के पास हम जा सकते हैं। वी विल सी एनी वन एज सेम, बिकॉज क्वालिटी ऑफ सोल इज सेम इन ऑल, है ना। क्वालिटी जो है वो सोल आत्मा एक है, पर सबका एक्टिविटी तो अलग अलग है ना। तो सांप के पास हम जाके उनको गले नहीं लगा सकते, शेर के पास नहीं जा सकते, पर ब्राह्मण के पास जा सकते हैं। मीन्स कि वी कैन गो फॉर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, है ना, एक मनुष्य के पास हम जा सकते हैं। सो बट टू ए ब्राह्मणा वी विल गो एंड सर्व, और वी कैन टेल हिम अबाउट कृष्णा। हम भगवान के मतलब ब्राह्मण के पास जा सकते हैं, उनको सेवा कर सकते हैं, उनको भगवान के विषय में बता सकते हैं, पर हम सांप और शेर को नहीं बताने देंगे। वी कांट गो देयर एंड टेल अबाउट कृष्णा टू स्नेक और लायन। फॉर ए लायन वी विल कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखेंगे। अरे लायन देखा तो दूर रहेंगे, भाग जाएंगे, ऐसा। एंड फॉर ए स्नेक वी विल मेक हिम गो अवे फ्रॉम द स्नेक, है ना, सांप से हम दूर चले जाएंगे। यानी इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि अभी हमारे पास यहाँ पे बैठ। सो इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल रेसिप्रोकेशन, यानी हम उनसे आदान प्रदान सेम करेंगे, ऐसा नहीं। इक्वल विजन मतलब डिपेंड ऑन थिंकिंग लाइक quality of devotion, not body. Hare Krishna. Thank you very much for joining. Maybe you all last time you all share some points. Thank you very much. If you learned nicely today also, so please you can share some points which you learned from